Hearts run right to the end. People come on, you don't need to be scared. Cause you're gonna love again. Hello, and welcome to the season 10 premiere of The Heather Riffett Show, which is a milestone season for this very web talk show. It is hard to believe that it has been almost a decade since I began this journey, so thank you for being a part of it. Today, I'm very excited to kick off season 10 with a Pakistani fashion designer, Noman Arfin, who has been part of the fashion industry for 17 years, starting his brand called Noshemia in 2002 and his first fashion show in 2009. Noman enjoys experimenting with embroidery and unique patterns, including turbans. One notable figure he has designed for is Prince William, who wore Noman's classic teal sherwani on his visit to Pakistan in 2019. Without further ado, let's get into it. Noman, thank you so much for joining me for this interview. Thank you very much, Heather. It's always my pleasure to be here. Of course. So, Noman, as I mentioned in your introduction, you are a designer who has been part of this industry for 17 years. But I was reading up on you and I was doing my research. You initially wanted to become a doctor. So, what got you into fashion then? It's a long story. Actually, I was a pre-medical student first, and however, my the family situation was totally different. So I was the youngest one. So what happened? My father saw me in art in mine of wrapping turban. So that was a family business. So I was the last one, and my two brothers were already a doctor. So what happened? So I became the victim in that. So he told me just to continue the father legacy और फिर father का जो काम है just to take over the hat villa and to start the work. So finally मुझे फिर इसके अंदर आना पड़ा और फिर मैं इसके अंदर फिर काम करना शुरू कर दिया. लेकिन actually only the turban wrapping and the hat villa was not my dream to do. अगर मैं कोई काम करूंगा सो मुझे फिर बहुत अच्छे तरीके से करना था. सो देन आई स्टार्टेड द ब्रांड नौशेमिया इन 2002. और उस जमाने के अंदर there was no such concept of art school and like this. So I started slowly and gradually और एक एक चीज मैंने समझी सीखी and finally I am here in front of you right now and I step into the fashion in 2009. So then my fashion work starts और फिर वो आगे पूरा काम चलता रहा. So, did you actually study fashion? नो मैंने फैशन पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने फैशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाया बहुत है. अच्छा, अच्छा. हाँ क्योंकि वजह यहाँ पर ये है कि जब मैं आया था तो उस जमाने में फैशन के स्कूल इतने थे नहीं पाकिस्तान के अंदर. इंडस था लेकिन इंडस के अंदर होता था लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी फैशन एजुकेशन को इतनी थी नहीं इन लेट 90s के अंदर. सो अच्छा. व्हाट हैपेंड मैं तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर जो है मैं अपने बिजनेस में था. सो आई वाज मोर टुवर्ड द बिजनेस और मोर टुवर्ड द टर्बन रैपिंग एंड द हैट विला. और Hmm. फिर उसके बाद जो है वो एक आर्ट स्कूल के साथ इन टच हुआ. फिर जिस तरह मैं काम करता गया तो उस जमाने में व्हेन आई स्टार्टेड द नौशेमिया ब्रांड तो फिर मेरे पास इंटर्न्स आते थे सीखने के लिए. फिर उनको मैं सिखाता था समझाता था. तो दिस द होल जर्नी स्टार्ट इन दिस वे. I think जो turban making जो थी, and I have a question for that. I'm gonna get to that question. लेकिन जो turban making थी, that was kind of like a turning point for you in terms of your pursuing your passion for fashion, correct? Yes, absolutely. So what happened ke turban wrapping is not an easy thing. Hmm. मतलब I wrapped the turban in front of so many people लेकिन वो उतने मजे से वो बांध नहीं सकते क्योंकि it's an art and the heritage and the culture what I Right. have. और इसमें मैंने सीखा बहुत है because I wrapped thousands of turbans. So what happened ke that was a very profitable business of us. So जब रैप करता था तो all the designers used to take the turban from me and they sell along with their packages along with the sherwani and all. तो फिर Hmm. होता ये था कि टर्बन was not only the thing. फिर slowly and gradually उस जमाने में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था नहीं कि कोई एक ऐसा स्टोर हो जहां पर ग्रूम की सारी चीजें अवेलेबल हो. टर्बन भी शेरवानी भी फुटवेयर भी. सो देन आई डिसाइडेड जस्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस by the name of Noshemia. Noshemia mean the bridegroom.
हम्म। सो आई स्टार्टेड दिस ब्रांड जहां पर अंडर वन शेल्टर उसको सारा सामान एक ही जगह पे ग्रूम को अवेलेबल मिल जाए. सो नाउ इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट उस जमाने में इन 2002 और इन लेट 90s इट वाज नॉट अ कॉमन स्टफ. तो हम्म। फिर मैंने फिर इसको स्टार्ट किया और फिर टर्बिन से फिर मैं शेरवानी के अंदर पे स्टेप किया और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आगे चलता रहा. हम्म। सो नौशेमिया के भी बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया इन 2002। तो नौशेमिया के बिहाइंड ये लॉजिक है, ये फिलॉसफी है दैट यू वांटेड बेसिकली द ग्रूम, एंड आई नो दैट यू आल्सो केटर टू वुमेन एज वेल, क्योंकि आपका कलेक्शन वुमेन का भी है, लेकिन मेन के लिए प्रिडोमिनेंटली यू वांटेड देम टू हैव ए वन स्टॉप स्टोर जहां पे उनको अपनी वेडिंग के लिए फॉर देयर वेरी स्पेशल डे दे कैन हैव एवरी सिंगल थिंग फॉर देम इन वन प्लेस। इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली. वजह ये होती है कि पहले कोई शेरवानी डिजाइनर कोई और होता था, टर्बन डिजाइनर कोई और होता था, अच्छा। हम्म। फुटवेयर डिजाइनर कोई और होता था. शेरवानी बनाने वाला है वो शेरवानी को शेरवानी के एंगल से देख रहा है, टर्बन वाला टर्बन के एंगल से देख रहा है. इस वक्त अगर हम कोई अगर पूरे ग्रूम को अगर डिजाइन करते हैं या बनाते हैं तो वी बैलेंस द होल स्टफ. कि अगर शेरवानी अगर बहुत ज्यादा गॉडी है, बहुत ज्यादा लाउड है, तो वी कीप द टर्बन सिंपल एंड नीट, प्लेन. ठीक है, या अगर शेरवानी प्लेन है तो हम टर्बन को लाउड कर सकते हैं. सो ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो इस वजह से द दैट एट एट दैट टाइम ये चीज इतनी कामयाब नहीं रही थी, क्योंकि जो डिजाइनर होते थे वो फिर हमारे पास आते थे, टर्बन हमसे लेके जाते थे और फिर मैं इंडिविजुअली टर्बन रैप करता था. सो हम्म। एक वन इसकी जो फिलॉसफी थी नौशेमिया स्टार्ट करने की, कि अंडर वन रूफ ग्रूम को सारा सामान एक ही जगह पे हर जगह, मतलब एक ही जगह से सारा सामान मिल जाए. बिल्कुल बिल्कुल। That was the whole idea. राइट। और नुमान, आपकी जो डिजाइन फिलॉसफी है, हर डिजाइनर की डिजाइन फिलॉसफी होती है, आपकी डिजाइन फिलॉसफी क्या है, एंड व्हाट आर सम कोर प्रिंसिपल्स दैट यू अबाइड बाय एज अ डिजाइनर? देखिए, डिजाइन फिलोसफी इज वेरी सिंपल. वी हमारी जो एक हेरिटेज है, वी मिक्स दैट हेरिटेज विद मॉडर्न अपीयरेंस एंड द मॉडर्न सिलुएट, उसके साथ हम मिक्स करते हैं. क्योंकि आजकल का जो ग्रूम है ना, उसको अपने कल्चर को भी लेके चलना है, उसको अपने हेरिटेज को भी लेके चलना है, अपनी सकाफत को भी. अब देखें, दुल्हन है, उसको लाल रंग का जोड़ा तो पहनना है चाहे कुछ भी हो जाए, और लाल जोड़ा पिछले 100 साल से या 200 साल से चलता हुआ आ रहा है शादी के लिए. ठीक है, उसी तरह दुल्हे को भी जो है वो लाइट कलर की शेरवानी पहननी है. तो वो जो एक हेरिटेज होता है, जो हमारा कल्चर होता है, लेकिन आजकल के ग्रूम को एक मॉडर्न इम्पैक्ट चाहिए होता है. सो माई हम्म। सिंपल फिलोसफी ऑफ माई डिजाइनिंग इज वेरी सिंपल, दैट आई do the heritage and all kind of cultural thing, and I mix and I blend with the मॉडर्निज्म, और पूरे एक मॉडर्न थीम के साथ, एक सिलुएट के साथ, एक अच्छे कट के साथ इसको एक न्यू एरा के लिए मैं इसको डिजाइन करता हूँ. बिल्कुल। अच्छा नुमान, आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2002 में। हर इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो टू ब्रेक थ्रू इन एन इंडस्ट्री विच इज एज कट थ्रोट एज द फैशन इंडस्ट्री। तो आपके इनिशियली कोई सेटबैक्स रहे हों, कोई ऐसे चैलेंजेस रहे हों जो आपने इन एक्सपीरियंस किए हों एज अ यंग नुमान आरफीन? चैलेंजेस, अच्छा, सबसे पहले तो मैंने अपना बिजनेस जो मुझे आफ्टर डूइंग माय हाई स्कूल, मैं तो 94 के अंदर बिजनेस के अंदर आया था. ठीक है, आई स्टार्टेड द ब्रांड इन 2002. सो हम्म। अगर आप चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस काफी ज्यादा थे. या। गिरना, उठना, फिर उसके बाद फिर चलना. सो दैट वाज लॉन्ग जर्नी. आप ये ना सोचें कि कोई भी, असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जो यंग एज के अंदर हम लोग गलतियां बहुत करते हैं और गलतियों से अपनी हम सीखते हैं. बिल्कुल। इवन हम लोग फैशन वीक भी करते तो फैशन वीक के अंदर एक मेरे अंदर एक बहुत ज्यादा एक बहुत चीज होती थी कि मैं ना अपने अपने ही काम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता था. मैं अगर एक शो करता था, मैं ये सोचता था नहीं मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ. फिर मैं एक और करता, मैं सोचता था मैं इससे भी अच्छा कर सकता था. सो दैट वाज द थिंग कि एक सेटिस्फेक्शन ना होना अपने ही काम से जो है, वो एक सबसे एक मेन रीजन होता था. जो कि जो और अभी भी अगर मैं कोई काम करता हूं, मैं बड़ी मुश्किल से अपने ही काम से सेटिस्फाइड होता हूं, क्योंकि मुझे ये पता होता है कि इसके अंदर बहुत सारी स्पेस है कि मैं इसको और अच्छा कर सकता हूं. तो मैं अच्छे से अच्छे की तलाश में, ये मेरी जर्नी जो है ना हमेशा चलती रही है, आज से नहीं, जमानों के साथ. तो और दैट्स मेक मी अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर डिजाइनर एज वेल. हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दैट वाज द मेन थिंग जिसकी वजह से आज मैं ये काम कर रहा हूँ. Yeah, I think I remember someone saying, and I don't know who it was, but like,
किसी ने कहा था योर अ डिजाइनर इज ओनली गुड एज हिज नेक्स्ट कलेक्शन। तो आई Yeah, थिंक you learn with your mistakes and then you eventually improve. So मैंने absolutely. टर्बन्स के भी बारे में अब मैं फिर बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल मैंने स्पेसिफिकली पूछना था कि टर्बन्स के बारे में आप मुझे ये बताएं कि सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है टर्बन की आपके लिए एज अ डिज़ाइनर। आई नो दैट यू स्टार्टेड क्रिएटिंग द टर्बन मेकिंग के आप उस बिजनेस में थे, यू वर लर्निंग द क्राफ्ट फॉर इट एंड दैट इज़ व्हाट पुल्ड यू टुवर्ड्स फैशन इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से आप मुझे ज़रा प्लीज़ बताएं कि टर्बन्स की सिग्निफिकेंस क्या है। देखें, इफ यू हर्ड द नेम ऑफ HSN कॉलेज हम्म। लाहौर, HSN कॉलेज की असेंबली के अंदर टर्बन पहनी जाती है। और जी। अगर किसी दुल्हा की शादी होती है लाहौर के अंदर, सो द ग्रूम इज इनकम्प्लीट विदाउट वेयरिंग द HSN टर्बन। हैव यू सीन दैट सफदर, सफदर जो मरियम नवाज के जो बेटे हैं, जी उनकी जी अभी शादी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपने दोनों इवेंट के अंदर ही वॉज वेयरिंग द HSN टर्बन। सो वजह ये होती है कि लाहौर के अंदर एक कल्चर है कि ग्रूम विदाउट द HSN टर्बन इज इनकम्प्लीट। अच्छा। ठीक है। हम्म। HSN टर्बन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत चलती है, लेकिन कराची के अंदर, साउथ रीजन के अंदर HSN का 90s के अंदर रुझान काफी ज्यादा था। अभी भी बनती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बनती जितनी पहले बनती थी, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर एक 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 कल्चर है इंडो पाक। डेफिनेट आपको एक इंडो पाक कल्चर, क्योंकि वी वर बोथ सेम इंडिया एंड पाकिस्तान, जब ये तो एक लाइन पार्टीशन की खिंच गई, तो आपको पता है कि कराची के अंदर बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करके आए हैं वो सारे इंडिया से ज्यादातर माइग्रेट करके यहाँ पर आए, जिसको महाजरीन कहते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर एक इंडियन टच और इंडियन फीलिंग्स बहुत रहती है। तो वी हैव मेनी काइंड ऑफ डिजाइन इन दैट विच इज राजस्थानी स्टाइल, विच इज कॉल्ड द जयपुरी स्टाइल। वी मेड दिस काइंड ऑफ टर्बन। अच्छा, सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करते हैं, तो मैं आपको ये बात करूं कि ग्रूम इज इनकम्प्लीट विदाउट द हेड गियर। पहले ऐसा होता था कि लोग शादी के अंदर जिना कैप पहनते थे, लियाकत कैप पहनते थे। द हेड हैज टू बी कवर बिकॉज ऑफ द निकाह सेरेमनी, ठीक है। तो इसी वजह से अब जब ये जिना कैप उतरी, लियाकत कैप उतरी, फिर उसकी जगह HSN टर्बन ने ली। फिर टर्बन फैशनेबल बन गई। फिर टर्बन को हमने नए नए स्टाइल के अंदर बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे कि मैं टर्बन रैप करता हूं, सो मेरी तो एक ख्वाहिश रहेगी कि टर्बन एक ऐसा फैशन रहे जो कि खत्म ना हो। और ये खत्म, मैं इसी वजह से मैं लाइफ रैप भी करता हूँ, मैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर दिखाता हूँ ताकि लोगों को ये पसंद आए और लोग इसको लेते हैं। और हमारे पास आते ही लोग मजबूरन, अगर किसी से उन्होंने कहीं गलती से शेरवानी कहीं से ससुराल से आ भी गई, या उनके पास अगर किसी इन लॉस की तरफ से मुसल्लत भी हो गया कि आपको शेरवानी जो है वो हमारे यहाँ की, मतलब कहीं और की पहननी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग टर्बन के लिए हमारे पास आते हैं। हम्म। नो आई तो थिंक टर्बन की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस है। नहीं, थैंक यू, दैट वाज अ गुड लर्निंग कर्व फॉर मी एज वेल। आप मुझे ये भी बताएं कि थोड़ा सा सेगवे वी विल सेगवे इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूछना चाह रहा था आपकी जो टील शेरवानी थी व्हिच आई पर्सनली रियली लव्ड फॉर प्रिंस विलियम व्हेन ही विजिटेड पाकिस्तान इन 2019 created a lot of hype। आपका पीपल के अंदर भी एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, आई वाज रीडिंग अप ऑन दैट, सो दैट वाज अ ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट। आप मुझे ये बताएं, how did this opportunity come about for you? एक ये एक स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। एक्चुअली ये ये जितनी भी रॉयल फैमिली होती है, मैं इनको बड़ा एडमायर करता हूँ। कोई भी काम करने से पहले इनका होमवर्क बहुत होता है। तो ये सबसे पहले जब इनका पाकिस्तान विजिट था, सो मैं जहाँ स्टॉकिंग करता था, वहां उन्होंने जाके हमारी शेरवानी देखी, हमारा ब्रांड देखा, फिर पूरी ब्रांड की रिसर्च हुई है। दैट वाज नॉट अ सिंपल जर्नी, ये कोई सिंपल चीज नहीं थी। अच्छा, वो चाहते तो किसी इंडियन डिजाइनर की भी पहन सकते थे, नहीं, उनको किसी पाकिस्तानी डिजाइनर की पहननी थी, ठीक हम्म। है। तो उन्होंने सारा सब कुछ देखा, फिर मेरे मुतल्लिक पूरी रखी हुई कि मैं करता क्या हूँ, पूरी हिस्ट्री देखी गई। फिर उन्होंने मुझसे फिर कांटेक्ट किया कि दे वांट द शेरवानी इन अ ब्लू कलर। फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि नहीं, अगर आप ब्लू कलर की नहीं, अगर आप टील ग्रीन पहने, तो वो बहुत सारी चीजें अपनी डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, ठीक है। और मैं भी उनसे एहतियात से पूछ रहा था कि ऐसा ना लगे कि उनको कोई बुरा लग जाए। लेकिन फाइनली व्हाट आई डिसाइडेड कि ये शेरवानी इनकी इस कलर की होनी चाहिए, तो दे लव्ड इट। और फिर उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा यू सेंड दिस शेरवानी व्हाट वी ऑर्डर्ड, और आप ये टील ग्रीन कलर की भी शेरवानी भेजें। वी विल सी दैट व्हाट इज गोइंग टू लुक नाइस ऑन प्रिंस विलियम। और फिर जो मैंने जो उनके लिए डिजाइन की थी,
दे दे सिंपली लव दैट, और उनको बहुत अच्छी लगी। तो उसके अलावा मेजरमेंट, फिटिंग, एवरीथिंग काउंट्स। उनकी सिर्फ एक मेरे पास पिक्चर आई, और उनकी पिक्चर देख के मैंने बॉडी से अंदाजा लगा के आई मेड द एक्यूरेट शेरवानी फॉर हिम। सो दैट वाज दैट वाज अ हिस्टोरिकल एंड अ मेमोरेबल इवेंट फॉर मी, कि जिस तरीके से उनकी वो चीज़ बनी थी, तो बड़ा मजा आया था। खैर एनीवे, इतनी उन्होंने इज्जत दी, और फिर उन्होंने मुझे कहा था खास तौर पे कि यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज, कि आपको बताना नहीं है कि यू आर मेकिंग अ शेरवानी फॉर अस। ठीक है, तो लेट हम लोग खुद बताएंगे। तो बहुत सारे डिजाइनर थे जो उसको क्लेम कर रहे थे कि जी हमने उनका कपड़ा बना के भेजा, हमने कपड़ा बना के भेजा। तो आई वो जस्ट, मैं सोच रहा था कि ये व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, लेकिन जब वो उतरे थे अपने रिक्शा से, तो द होल थिंग हैपेंड। तो वो किंगसिंगटन पैलेस से ही वो पूरी सोशल मीडिया के अंदर वायरल होना शुरू हुआ। तो दैट वाज अ लवली थिंग। तो वो एक बड़ा अच्छा टाइम था। और उन्होंने ना, उसको सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने पहना बहुत अच्छी तरीके या से। दैट वाज द मेन थिंग, कि उन्होंने जिस तरीके से पहना, शायद हमारे पाकिस्तानी भी इतने प्यार से नहीं पहनते जितने प्यार से उन्होंने हमारी शेरवानी पहनी है। या नो, it was really a very good classy शेरवानी, बहुत अच्छी, यस। और वो that color was just stunning। आप मुझे ये भी प्लीज बताएं कि आपने उनको टर्बन क्यों नहीं पहनाया? मैं उनको टर्बन पहना देता, और मैं, लेकिन वो टर्बन उनको पहनना था नहीं, उन्होंने सिर्फ शेरवानी, सिर्फ उनको अटायर पहनना था। क्योंकि अगर पहनते हैं तो टर्बन इज गोइंग टू बी एचिसन, और जब टर्बन पहनने के बाद आदमी दुल्हा ज्यादा लगता है। That is ठीक true। है। तो हमारी जो शेरवानी है, ये एक शेरवानी तो इज कम फ्रॉम द कायदे आजम एंड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ कल्चर। या तो या वो उन्होंने तो इस चीज को एडमायर किया कि ही टुक द शेरवानी एज अ कल्चरल आउटफिट। तो उन्होंने इस तरीके से सोच के इसको पहना, और उसके अंदर थोड़ी एम्बेलिशमेंट करवाई, उन्होंने उसको मॉडर्न एरा के हिसाब से उन्होंने उसको पहनना पसंद किया। सो दैट वाज द थिंग अबाउट दिस, इसकी वजह से उन्होंने टर्बन नहीं पहना। या एंड आपके लिए, डू यू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स आपका जो ब्रांड है, यू स्टार्टेड रिसीविंग मोर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अब्रॉड एंड ऑल्सो मे बी मोर कोलैबोरेशंस आफ्टर दैट इवेंट? यस, एब्सोल्युटली। वो हुआ ये था, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। इन अक्टूबर ही केम, इन अक्टूबर 2019, हम्म। और फिर दिसंबर 2019 में हमारा कोविड स्टार्ट हो गया था, या और एवरीथिंग वो शट डाउन। तो हुआ क्या था कि वो क्या कहते हैं, हुआ ये था कि एक तो इसकी मार्केटिंग बहुत हुई थी, लोगों ने दुनिया भर में सब चीजें देख ली थी। फिर हमारा एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स का काम स्टार्ट हो गया था। इस चीज ने मुझे बड़ा हेल्प किया था, क्योंकि लोग वैसे भी मुझे, मेरी एक 15 ईयर्स की जर्नी से लोग मुझे पहचानते भी थे। फिर उसके बाद हमारा एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर उसने काफी ज्यादा इफेक्ट किया, कि प्रिंस विलियम वोर द शेरवानी ऑफ अस। तो वो एक बहुत ही, और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, क्योंकि मुझे अंदाजा इतना नहीं था। मुझे ये तो पता था कि प्रिंस इज प्रिंस, एंड प्रिंस विलियम को लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो हम्म। उनसे लोग जितनी मोहब्बत करते हैं, तो बस जैसा उन्होंने पहना है, हमें वैसी ही शेरवानी चाहिए। सो दैट वाज द थिंग। सो बहुत हसीन पल थे। दैट वाज अ वेरी, अगर आई विश कि मुझे उस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी जिंदगी में दोबारा मिले। Inshallah, I think with the passage of time, you'll definitely get the chance to, in networking and collaboration के साथ, I think definitely आपको जरूर chances मिलेंगे। I think every designer has that opportunity। आप मुझे ये भी बताएं कि कभी आपको लगता है कि इंडस्ट्री जो है, फैशन इंडस्ट्री है, it has been a very cutthroat place for you as a designer? कभी आपको फील हुआ है कि कंपटीशन बहुत है, comparisons में काफी लोग पड़ जाते हैं often times, and it's not just the fashion industry, हर प्रोफेशन को अगर आप ले लें, when you see someone who's being a little bit more successful than you, you obviously feel good for them, but you also try to do some introspection अपने बारे में कि am I doing the right thing? You start doubting yourself, pessimism बहुत होता है। तो how do you take that? देखिए, कंपटीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन इज लाइक अ करंट। ठीक है, अगर कंपटीशन नहीं हो, करंट ना हो, तो हमें जो है किसी भी तरह का जो है ना, एक इंस्पिरेशन नहीं मिलती काम करने की। Yeah। ठीक है, हमें चैलेंजेस नहीं मिलते काम करने के। तो ये कंपटीशन, एंड हेल्दी कंपटीशन इज गुड। ठीक है। तो बात ये है कि
ये सब चीजें जो है ना, ये डिपेंड करती है कि एक अच्छा डिजाइनर उसको लेकर किस तरीके से चल रहा है। अगर मैं जो हूं, मैं अगर अपने ब्रांड को लेकर चल रहा हूं, तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के ऊपर ज्यादा वर्क करूं, ब्रांड के ऊपर ज्यादा वर्क करूं, अच्छी क्लोथिंग पे काम करूं, अच्छे कट पे काम करूं, अच्छी क्राफ्टमैनशिप पे काम करूं, अच्छी स्टिचिंग पे काम करूं, ताकि लोग मेरे ब्रांड को ज्यादा अहमियत दे, उसकी एक लॉयल्टी और बढ़े। तो अगर मैं इस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, दैट इज गोइंग टू मेक माई ब्रांड मोर सक्सेसफुल और मोर मोर बेटर देन द अदर ब्रांड। तो मेरे जो है, मेरा टारगेट यही रहता है। हाँ, अगर आप जिसकी बात करते हैं टू हैव अ कट थ्रोट, यस, कंपटीशन तो होना चाहिए, और जब तक कंपटीशन नहीं होता, जब तक मजा नहीं आता। हम लोग जब फैशन वीक करते थे, दैट वाज अ टाइम कि जब हमारा FPW 2009 से लेकर 2019 तक का एक एरा था, 10 साल का, उसमें रहता था। तो हमारा एक बहुत ज्यादा एक रहता था अंदर से कि किसकी कलेक्शन इस साल अच्छी आएगी, या कौन अच्छी कलेक्शन बना रहा है, या कौन अच्छा काम कर रहा है। तो वो एक एक एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट रहती थी हमारा। हम एक इलामा इकबाल का शेर है, वेदर यू अंडरस्टैंड दैट और नॉट, लपकना झपकना झपट के पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो हमारा खून इससे जो है वो गर्म रहता था, जिस जिस तरह हम लोग काम करते थे। तो आई थिंक दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉम्पिटिशन, हेल्थी कॉम्पिटिशन, आई ऑलवेज लाइक इट। हम्म। अच्छा, अपने नए कलेक्शन के बारे में बात बताएं, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन? देखिए, मैं हमेशा जो है ना, आजकल सबसे पहले आई एम वर्किंग ऑन अ टू कलेक्शन विच इज इन अ पेस्टल शेड एंड वन इन अ डार्कर शेड, ठीक है। नए कलेक्शन पर अगर हम काम करते हैं, द एसेंस ऑफ द नौशेमिया इज वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है। हम ज्यादा जो है, ज्यादा ड्रामा, ज्यादा चीजें हम क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो है द मार्केट इज टोटली डिफरेंट। लोगों को जो है ना, हमारा बिजनेस, स्टोर बिजनेस के साथ साथ हमारा सोशल मीडिया बिजनेस और हमारा ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे काम के अंदर लोग कल्चरल चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक मॉडर्न टच और मॉडर्न फील और एक मॉडर्न लुक होना बहुत जरूरी है। तो बस मेरा एक टारगेट ये रहता है कि अगर मैं कोई भी चीज डिजाइन करूं, उसको एक स्मार्ट लुक के अंदर, फिटिंग अच्छी हो, स्टिच अच्छी हो, क्राफ्टमैनशिप अच्छी हो, मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट यही होता है। तो मेरी नई कलेक्शन जो बन रही है अभी, दैट इज गोइंग टू बी अ हैवी हैवी एम्ब्रॉयडरेड विद अ सीक्वेंस वर्क, और ये सारी चीजें जो हम लेकर आते हैं विद अ डीपर टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर की क्वालिटी ऐसी हो कि जैसे मेरी एक आदत हो गई है कि कोई भी चीज मुझे प्लेन पसंद नहीं आती, ऐसी आए कि जिसको सामने जाके फील करे कि व्हाट इज गोइंग। जैसे अगर मैं किसी एक बड़े डिजाइनर के पास जाता हूँ उसकी चीज देखने के लिए, तो उनके अंदर क्वालिटी ये होती है, उनकी क्राफ्टमैनशिप इतनी खूबसूरत होती है कि मैं करीब से जाके देखनी पड़ती है कि इसने काम कैसा किया हुआ है। सो हम्म। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम वर्किंग ऑन माई टू वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन। वन वन नेम इज नायाब, जो कि हमारी मिड ऑफ दिस ईयर अभी वो जो लॉन्च होगी, और जिस पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरी मेरी कलेक्शन समथिंग इन द सया नूर, जिस जो ब्लैक के ऊपर है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। सो ये मेरी दो कलेक्शन है जिसके ऊपर मेरा फोकस बहुत ज़्यादा है। बस मेरी है कि कोशिश मेरी ये है कि जस्ट टू मेक दैट कलेक्शन ऐसी बनाऊं कि लोग इसको देखें और लोग इसको पसंद करें। हम्म। अच्छा, आपका जो ब्रांड है, इज इट मोस्टली इट केटर्स टू मेन और डज इट आल्सो केटर टू वुमेन? क्योंकि आई नो कि ज्यादातर फोकस मेन पे ज्यादा है, लेकिन वुमेन की भी आपकी काफी पीसेस हैं। आई हैव सीन योर वेबसाइट, आई हैव स्कैन थ्रू इट, सो टेल मी अ बिट अबाउट दैट। देखिए, कोई भी डिजाइनर होता है ना, हर डिजाइनर के ऊपर जो है ना एक ठप्पा लग जाता है, स्टैंप, ठीक है हम्म। ना। और मेरे ऊपर तो स्टैंप जो है वो प्रिंस विलियम ने ऐसी मोटी सी लगा दी है कि ना पूछें, जैसे आई एम अ शेरवानी मेकर ओनली। और लोग मुझे, इतने सालों से मैं काम करता हूं, तो लोग मुझे एज अ शेरवानी डिजाइनर, एज अ ग्रूम वेयर डिजाइनर, एज अ वेडिंग डिजाइनर, एज अ फेस्टिव डिजाइनर, लोग मुझे ज्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। लोग मुझे, शायद अगर मुझे लोग ये ना बोलें कि आई एम ए फैशन डिजाइनर, लोग मुझे कहेंगे आई एम I'm a wedding designer, I'm a festive designer. I think the word the festive designer is very important, क्योंकि अब डिजाइनर्स के अंदर भी कैटेगरीज आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। हम्म। तो बात सिर्फ ये है कि मेरा जो बिजनेस वुमेन्स वेयर का भी है, मैं तो सूट्स भी करता हूँ, मैं तो जी वुमेन्स वेयर भी करता हूँ, मैं वुमेन वेयर का प्रेड भी करता हूँ। लेकिन जो मेरे ऊपर जो स्टैंप लग गई है ना, वो स्टैंप लग गई है शेरवानी की। और मैं कोई, और ये अच्छी बात है, हर कोई डिजाइनर, तो बहुत कम डिजाइनर ऐसे होते हैं जो कि ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि मेरे ऊपर स्टैंप लगे, और मेरे ऊपर का स्टैंप लग गई है, सो आई एम एंजॉइंग दैट।
मजा आ रहा है मुझे। That's good. Acha, Noman, there is also I wanted your take on this because this is pretty something that is a point of conversation in the fashion industry. Fast fashion or luxury fashion जो हैं बहुत मुख्तलिफ हैं. So how do you think, how is the practice of fast fashion changing the way people and consumers are buying and looking at luxury fashion? क्योंकि fast fashion है काफी ज़्यादा I think it is creating a lot of environmental degradation भी काफी ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से. So what is your take as a designer on this very topic of sustainability देखें, and fashion? अगर बीन एज ए बिजनेसमैन अगर मैं बात करूं ना, तो हमेशा एक बात ये कही जाती है कि अगर आपको अमीर बनना है तो वो चीज बेचो जो खास लोग पहनते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अमीर बनना है ना, तो आप वो चीज बेचो जो हर कोई पहनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलिंग वेस्ट या अंडरगारमेंट स्टफ, जिसको हर कोई पहनना, जिसके लिए, जो कि हर इंसान की एक नेसेसिटीज है। ठीक है, तो Hmm, वो आपकी देखें उसकी सेलिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसी तरीके से कोई भी ऐसा चीज जो कि सस्ती चीज हो, जो कि बिलो 5,000 इन पाकिस्तान मार्केट प्राइस, तो वो बिकेगी ज्यादा, उसकी मार्केट बड़ी होती है। हमारा काम करना, मैं, मेरी ख्वाहिश तो हमेशा ये थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि लोग, पब्लिक जिसको ज्यादा खरीदती हो। लेकिन मैं आ गया हूं बीन एज ए लग्जरी डिजाइनर, और लग्जरी डिजाइनर, और क्या कहते हैं, इफ यू टॉक अबाउट दिस फास्ट फॉरवर्ड वन, और जिसमें आप इसकी बात करते हैं कि ये इट्स अ टू डिफरेंट थिंग। मतलब मैं अगर ये सोचूं कि मैं कोई प्रेट लाइन लॉन्च करूं, तो मैं शायद प्रेट लाइन इतनी अच्छी नहीं लॉन्च कर सकता जितनी अच्छी मैं लग्जरी प्रेट को लॉन्च कर सकता हूँ। hmm, hmm. तो ये सब के साथ हो जाता है। जिस तरीके से मेडिकल फील्ड के अंदर हर चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन होती है, उस तरीके से हमारी फील्ड के अंदर भी हर चीज के अंदर स्पेशलाइजेशन है। बिल्कुल बिल्कुल. No, that's well put. Very lastly, आप मुझे बताएं, who do you credit for your success? ऑनेस्टली अगर देखा जाए, माई Hmm, फैमिली हु सपोर्ट मी अ लॉट, एंड देर आर फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री हु रियली पुश मी कि आप ये करो, दैट गिव मी अ डायरेक्शन। आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि एक का नाम लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे। सपोर्ट काफी ज्यादा रहा, इंडस्ट्री की तरफ से भी और फैमिली की तरफ से भी। लेकिन इट्स नॉट एन ईजी थिंग। बहुत ही गिरा हूं, बहुत संभला हूं, और बहुत सारे लोगों ने लेग पुलिंग भी की है। बहुत सारी, मतलब इट्स अगर आज मैं जिस जगह पे बैठा हूं, इस ये जर्नी जो है इतना आसान था नहीं। लेकिन हर वक्त हर जगह लड़ते संभलते करते कराते यहां तक पहुंच गए। hmm. और सो अगर मैं कोई अगर, हम्म, जी बोले बोले। प्लीज प्लीज गो अहेड कंप्लीट. हाँ, मैं अगर 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 सही मानूं, मैं अगर इसको इस चीज का क्रेडिट दूंगा, तो माय फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। माय फैमिली सपोर्ट मी अ लॉट, और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे पुश किया कि मैं ये काम करूं। एंड आई एम हु व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय फैमिली। बिकॉज योर फैमिली. अच्छा, क्लोज तो मैं करने लगा था, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना है कि एक कोई यंग डिजाइनर अगर आ रहा है इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ फैशन, तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे कि वो क्या ना करे? हम्म, ना करे, लोगों के पीछे ना भागे। हम्म, लोगों के पीछे ना भागे, क्योंकि वजह ये होती है कि जो एक अच्छा डिजाइनर होता है ना, उसको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता। हम लोग भागे थे, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें कोई समझाने वाला था नहीं। ठीक है, जो अच्छा काम करने वाला होता है, दुनिया खुद उसके पीछे भागती है। और आजकल डिजाइनर्स कुछ ऐसे आ रहे हैं जिनका इतना अच्छा काम है कि उनको किसी की भी सहारे की जरूरत नहीं है। वो खुद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके कल जाके वो बहुत बड़ा नाम बन जाएंगे। सो दैट्स द थिंग। हम जब थे, हमें हर किसी के पीछे भागना पड़ता था, हर किसी की सपोर्ट के लिए भागना पड़ता था। लेकिन वजह यह है कि अब सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है, चीजें बहुत बदल चुकी हैं। एजुकेशन आपको वैसे ही मिल जाती है। हमारे टाइम के अंदर थोड़ी एजुकेशन इस तरीके से थी नहीं जिस तरीके से आज अवेलेबल है, वाया द सोशल मीडिया, वाया द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब चीजें हमारे दौर में, उस जमाने में ये सब चीजें होती नहीं थी। लेकिन अब जो है, वो एक अच्छा काम करने वाला, वो अच्छी तरीके से काम करे, और वो खुद काम करे, और उसको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल. These are pearls of wisdom from Numan Arfin. Thank you so much for joining me. It was a pleasure talking to you and learning more about you, and I wish you all the best.
That is all for now. Viewers, stay tuned for more on my official YouTube channel and Facebook page. Until then, take care. Allah Hafiz.